नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानंद उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईटी जेई एंड नीट। दिस इज द 24th डे ऑफ जेई मेंस रिवीजन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 3। In coordination compound part 3 we are going to discuss about the color of coordination complex। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर करें। लास्ट क्लास में हम सीएफटी की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, जैसे कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक मूवमेंट एंड दिस मैग्नेटिक मूवमेंट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। Another application of crystal field theory is we are able to explain the color of complex compound with the help of CFT। तो आइए कलर को समझते हैं। सो कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड एंड चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू मेटल। तो हमें पता है कि अगर कोई ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो इस ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये फ्री मेटल आयन के डीजेनरेट ऑर्बिटल है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स व्हेन द ligand will come towards the central atom due to repulsion between the lone pair electrons of the ligand and the electrons in d orbital of central atom, there is repulsion, and because of that repulsion the energy of d orbitals will divided into two parts, T2g and eg. In axial orbitals the repulsion will be more, in non-axial orbitals the repulsion will be less. Now this is the coordination complex. Now if this coordination complex is exposed to light, then this coordination complex will absorb photon from the incident light, and because of that there is an excitation of this complex and the electron from T to G will move to Eg। तो ये जो डेल्टा नॉट है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसके बराबर फोटोन की एनर्जी होगी। सो द एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी रिटन एज hc upon lambda। So we can say that crystal field splitting energy is inversely proportional to the wavelength of the photon absorbed, and the color of the complex compound is the complementary color of the color absorbed, right? So we are going to discuss about complementary colors. So the main thing is that the delta naught is inversely proportional to the wavelength of the photon absorbed, and here one conversion factor is there. When we are getting 1 upon lambda, which is equal to 83.7 per centimeter, because we are writing that delta naught or energy of photon is hc upon lambda, so energy of photon is directly proportional to 1 upon lambda, which is known as wave number. So if the value of wave number is 83.7 per centimeter, and if we want to convert into kilojoule per mole, then 1 kilojoule per mole is equivalent to 83.7 per centimeter. Photons of appropriate energy can excite the complex compound from ground state to excited state. So here this is a color wheel. So we know that in a spectrum of color there are 7 colors. In a spectrum of 7 colors I can write that violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So in this color wheel we have removed this indigo color, so now it is even number of colors, right? 6 colors are there, and we can say from this color wheel that the energy absorbed by the complex compound coordination compound is orange. If the color absorbed is orange, then the color emitted or the color which we found for the complex compound will be its complementary color. So orange का complementary color blue होगा. Same way we can say that if the color absorbed by the complex compound is red, then its complementary color will be green. The problem in this color wheel is that the range of different colors, like orange color, if you see, this is 590 to 630, so the range of this color wavelength is 40. But if we go opposite to this, right here, if we see the range of color 430 to 480, so it is 50, so it is not evenly distributed. So if we try to find out practically the color of compounds, the color absorbed by them and their complementary color, it's a very complicated thing, right? This is the simplified way to an easy way to a thumb rule to understand that what is the color absorbed and what is the complementary color. The factors which
which can affect delta naught will affect lambda absorbed, because delta naught is inversely proportional to lambda absorbed, and can affect the color of the complex, because lambda absorbed and the lambda emitted, or we can say that they are complementary colors. So the color of the complex will depend what color it is absorbing. So what are the factors which can affect the value of delta naught? We have studied there are 4 factors which can affect the value of delta naught. That is the charge on the central atom, because higher the charge, the ligand will be attracted more towards the central atom and the repulsion will be more, so delta naught will be more. So like here one example is there that the same metal is existing in different oxidation state. Vanadium is existing in +2, +3, +4 and +5. In different state of vanadium in aqueous medium, it has different colors. So we know that if we change the charge on the central atom, the delta naught will change. If delta naught will change, then color will change. So here another example, this is given in D block, right? I have taken from this diagram from NCERT, and this is the color of different ions in aqueous medium. Like we know that copper +2 in aqueous state is existing in CuH2O 6 times 2 plus, right? And CuH2O 4 times 2 plus, and it is blue. CuSO4.5H2O is blue in color, right? So different metal ions in aqueous medium has different colors. Like nickel is green in color, cobalt +2 is pink in color, right? And iron +3 is yellow in color, and iron +2 is green in color. So these are the colors of different metal ions in aqueous medium. So till now in JEE Advanced or JEE Mains, they're not asking the colors, but they can ask, you should know about the colors of these metal ions in aqueous medium. And if you know the color, you know that what color it is absorbed, right? So based on that, if we see the second factor, delta naught depends on coordination number and type of ligands, and the color also depends on the coordination number and type of ligand. Here ये chemical equilibrium में reaction है, और ये lab manual में भी हम ये practical करते हैं, जिसमें cobalt +2 aqueous medium में pink color का होता है, right? Cobalt +2 solution in aqueous medium is pink in color. अगर मैं इसमें Cl- introduce कर रहा हूँ, तो Cl- is removing, displacing this H2O ligand, right? And there is a formation of blue color COCl4 2- cobalt +2 में ही है यहाँ पे, तो this is blue in color. So room temperature पे ये हमने chemical equilibrium में पढ़ा है, और ये lab manual में भी है कि at room temperature this equilibrium is blue in color, means this is dominating and this is an endothermic reaction. तो हम क्या करते हैं कि solution mixture के आसपास अगर हम ice cubes रखते हैं, तो because this reaction is endothermic, if we decrease the temperature, reaction will move in backward direction. So the blue color is converted into pink color. So the point here is the central atom is cobalt in both the compounds. The oxidation state is +2. Right here, the coordination number and the ligand is changing. If the coordination number and ligand will change, delta naught will change. If delta naught will change, the color of these complexes will be different. Here another example where again in all these compounds, if you see there are 6 compounds. In all these compounds, cobalt is present in +3 oxidation state, and the coordination number of cobalt is 6. So like in first 3 examples, if you see, there are 5 ammonia which is acting like a ligand and 1 halogen. So the halogen, if you are changing one ligand also, and the ligand is of the same type like halogen, but you are changing the halogen Cl, Br and I, then the colors are also changing. So you can see here that on changing one ligand also, delta naught will change. If delta naught will change, color will change, right? Same way, this is another example where cobalt is present. These 3 examples, cobalt is present in +3 oxidation state, coordination number is 6, but if you are changing the ligands, then the color is changing. So the second factor, anything which can change the value of delta naught will change the color of the complex. So here this is a question asked in JEE Mains 2020. ये question हमने पहले भी discuss किया in application of CFT. So let us go through the question. The electronic spectrum of titanium, ये NCERT में titanium compound के बारे में दे रखा है. You should also remember that what is the color of titanium +3, right? It is given in NCERT. So the electronic spectrum of titanium H2O 6 3+ shows a single broad peak with a maximum at
20,300 per centimeter. The crystal field stabilization energy of the complex ion in kilojoule per mole is, right? So one way is that delta naught is equal to the energy of photon absorbed, which is equal to hc upon lambda. From there we can solve this, right? We have solved earlier, right? So we are getting approximately, because some approximations are taken, 237.6. now if we know this conversion factor, right, we can directly use. तो यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि लैम्डा 1/लैम्डा की वैल्यू दे रखी है पर सेंटीमीटर में, इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस यूनिट इनटू किलोजूल पर मोल, आई हैव टू डिवाइड इट बाय 83.7. So on division with at 83.7 we are exactly getting the answer what is given, right? So this conversion factor is very important. It will save a lot of time. मेंस में वैसे भी सवाल पूछा गया जहां पे इस कन्वर्जन फैक्टर को यूज करके वी कैन डायरेक्टली राइट. अगर यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सारे assumptions हैं, like 6.626 लेना है या 6.6 लेना है, right? This is fine, but it is not exact value. It is also approximate value. So we are getting this approximate value. We can solve by both methods because the options are far apart. There is nothing changed, but this relation is very useful. Now this is a table given in NCERT, right? So this is color of light absorbed by different compounds. So here titanium, you should remember that what is the color of titanium plus 3? So it is violet in color. What is the light absorbed? Iska complementary color, violet ka complementary color, that is blue green. So this color wheel is not going to help exactly, but at least it is a thumb rule to give the answer. If you don't know anything, you can make and you can guess that what will be the possible answer, right? तो अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं. जैसे जेई एडवांस में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी सिंपल क्वेश्चन. वी नो दैट कॉपर सल्फेट जो है एक्वस मीडियम में ब्लू कलर का होता है, CuSO4. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट CuH2O4 टाइम्स 2 प्लस SO4, राइट? सॉलिड स्टेट में होता है CuSO4.5H2O. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें 1 होता है. तो जब इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इट विल फॉर्म CuH2O4 टाइम्स 2 प्लस, एंड इट इज ब्लू इन कलर. द कलर ऑफ लाइट एब्सॉर्ब्ड बाय द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. तो अभी अगर हमें कुछ याद नहीं है और हम कलर व्हील के हिसाब से जाएं, तो अभी कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो ब्लू कलर का है, और ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? ऑरेंज. तो जेई वालों ने जो आंसर दे रखा है उसमें इफ यू सी गो थ्रू द ऑप्शंस, राइट, हियर ऑरेंज रेड दे हैव गिवन, राइट? ऑरेंज इज देयर इन ओनली वन ऑप्शन. तो यू कैन सी दैट कि ये जो रेंज है ये 50 की है, यहाँ पे जो रेंज है वो 40 की है, राइट? सो दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमेट्रिक. सो व्हेन वी आर सेइंग दैट द कलर इज ब्लू, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, वी कैन से ऑरेंज, रेड, मे बी द right. So it's a thumb rule to help you. At least it is with the help of this we are able to find out that what are options which are not possible, right? These three are not possible and this is possible. तो अगर मुझे ये व्हील अगर याद भी होता है तो भी इसकी मदद से, बट बेटर वे इज दैट वॉट एवर द एग्जाम्पल्स गिवन, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, अगर आप थोड़ा उसकी प्रैक्टिस करो एग्जाम से पहले, देन इट विल हेल्प यू अ लॉट. अभी तक जेई मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बड़े लॉजिकल है, याद करने वाले एग्जाम्पल्स बहुत कम है. तो विल गो थ्रू. दिस इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में निकल के कॉम्प्लेक्सेस हैं और इस पे बेस्ड बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन अभी भी करंट टाइम में भी पूछे जा रहे हैं. 2023 में भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बेस्ड ऑन दैट. सो वी आर सेइंग दैट अगर यहाँ पे निकल हर कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर निकल का 6 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट मोनोडेंटेड लिगेंड, दिस इज मोनोडेंटेड बाइडेंटेड, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6. तो ये आपको दिख रहा है कि अगर हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इफ वी आर चेंजिंग द लिगेंड डेफिनेटली द कलर विल चेंज, राइट? तो ये 4 ऑप्शंस में कलर, बट वी नो दैट दिस इज बाइडेंटेड लिगेंड और ये जो EN है इट इज अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन H2O. तो अगर मैं डेल्टा नॉट कंपेयर करता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है, ये तीसरा कॉम्प्लेक्स है और ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, तो डेल्टा नॉट की जो वैल्यू होगी वो ये, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है वाटर, राइट, तो सबसे कम डेल्टा नॉट की वैल्यू इसके लिए होगी. फिर एक बाइडेंटेड लिगेंड आ गया और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट, तो दूसरा जो डेल्टा नॉट होगा उसका ऑर्डर ये होगा, दिस इज लेस देन दिस. यहाँ पे 2 आ गए तो द थर्ड वन इज ग्रेटर देन सेकेंड वन, और यहाँ पे ये तीनों है. तो वी कैन से द वैल्यू ऑफ डेल्टा
नॉट 1 इज लेस देन डेल्टा नॉट 2 इज लेस देन डेल्टा नॉट 3 इज लेस देन डेल्टा नॉट 4। और क्वेश्चन ये जो है लैम्डा एब्जॉर्प्शन से भी पूछा जा सकता है कि इन चारों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का लैम्डा एब्जॉर्प्शन क्या है, तो डेल्टा नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एब्जॉर्प्शन। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ लैम्डा एब्जॉर्प्शन। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहां पे हमें कलर को याद नहीं रखना है, हमें बस केवल रिलेशन याद रखना है कि डेल्टा नॉट और लैम्डा एब्जॉर्ब में क्या रिलेशन है। फॉर एन एग्जांपल ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंप्लीफाइड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ थ्री कॉम्प्लेक्सेस 1 2 and 3 of Mn plus ion are provided below. Their lambda max values are marked as A, B, C respectively. The correct match between the complexes and their lambda max value is, तो ये तीन कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं जिसमें मेटल प्लस N प्लस आयन ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल इज प्रेजेंट इन N प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल दीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें NCS अमोनिया एंड MF6 है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यू कैन फाइंड आउट दैट वेयर इज द पोजीशन ऑफ NCS माइनस एंड वेयर इज द पोजीशन ऑफ अमोनिया, राइट। सो वी कैन से दैट अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देन NCS माइनस एंड फ्लोराइड आयन तो कहीं इधर होगा। सो we know that if the central atom is same, coordination number is same, stronger the ligand, more will be the value of delta naught, और delta naught और lambda जो है वो inversely proportional है। So from here I can say that delta naught of the third is greater than delta naught of the first is greater than delta naught of the second, and delta naught and lambda absorption is inversely proportional. So we can say here that lambda absorption of the third complex is less than first and first is less than second. So this is the answer. So here if you मैच, ए का आंसर 3 होना चाहिए, बी का आंसर 1 होना चाहिए और सी का आंसर 2 होना चाहिए। सो फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग दैट दिस इज द आंसर, ये आंसर आ रहा है, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। सो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस वी हैव टू रिमेंबर दिस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आल्सो, राइट। और ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये एक्सपेरिमेंटल है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विल नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट, एंड मैंने वही लिखा जो एनसीईआरटी में मेंशन है, राइट। सो यू हैव टू प्रैक्टिस। जनरली मैंने आपको बताया है कि अगर इन जनरल बात करें तो हेलोजन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, देन हेलोजन के बाद ऑक्सीजन फैमिली आती है और ऑक्सीजन फैमिली के बाद नाइट्रोजन फैमिली आती है एंड देन कार्बन फैमिली विल कम, राइट। नाउ अगेन बेस्ड ऑन दिस देयर इज अ क्वेश्चन इन 2022। तो ये जरा हम जेमस्टोन्स के बारे में, ये एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है। लेट मी रीड दैट द colors produced by electronic transition within the d orbitals of a transition metal ion occurs frequently in everyday life. Ruby, for an example, is aluminium oxide containing about 0.5 to 1% of chromium plus 3 ion, and chromium plus 3 ion का इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है कि क्रोमियम होता है 3d5 4s0, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 3d3 होगा, राइट, which randomly distributed in positions of normally occupied aluminium plus 3। अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा है तो सॉलिड स्टेट में एल्यूमिना जो है इट इज अ कलरलेस सॉलिड बिकॉज एल्यूमिनियम के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, देयर इज नो डी ट्रांजिशन, इट इज HCP with respect to oxide ion and aluminium plus 3 is present in octahedral void। ये जेई एडवांस में पूछा गया था क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एल्यूमिनियम प्लस 3 is present in octahedral void, so its coordination number will be 6। नाउ कुछ एल्यूमिनियम की पोजीशन क्रोमियम ने ले ली है, तो क्रोमियम भी किस octahedral ज्योमेट्री है, क्योंकि 6 ऑक्सीजन एटम इज सराउंडिंग इट इज प्रेजेंट इन octahedral void। सो यू नो दैट एक तरह से ये कॉम्प्लेक्स की तरह ही एक्ट करेगा, एल्यूमिनियम की जगह क्रोमियम आ जाएगा और ऑक्साइड आयंस जो हैं वो लिगेंड की तरह वर्क कर रहे हैं। सो फ्रॉम देयर यू कैन से दैट देयर इज डी ट्रांजिशन। सो द कलर ऑफ दिस जेमस्टोन दैट इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट रूबी, रूबी का जो कलर है वो रेड कलर का होता है, राइट, रेड ऑरेंज रेड कलर, दिस इज द कलर ऑफ रूबी एंड दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इम्प्योरिटी क्रोमियम विच इज रिप्रेजेंटिंग डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये लैम्डा एब्जॉर्प्शन, अगर लाइट इस पे इंसिडेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं T2G में वो EG में जाएंगे, and we can write that delta naught is equal to Hc upon lambda naught, and from there we are saying that the observed color of this ruby is orange red। Same way there is an silicate, right, beryl silicate है in emerald, chromium plus 3 ions occupying octahedral sites in the mineral beryl and the absorption band। So again here it is a type, यहाँ पे अगर हम बात करें सिलिका SiO2 में सिलिकन जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है, सिलिकन इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, और
उस सिलिकॉन की जगह कुछ जो है वो एल्यूमिनियम +3 आयंस आ जाते हैं, एंड दैट्स वे द सिलिकेट इज प्रेजेंट. So these are present in tetrahedral void. This beryllium, so beryllium is present in +2 oxidation state. तो बेरिलियम +2 जो है ये ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड में है. बेरिलियम +2 इज प्रेजेंट इन ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड. नाउ इसमें कुछ बेरिलियम की जगह क्या आ जाएगा, क्रोमियम +3 आ जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्रोमियम +3 again the delta naught value in this will be different, and because of that it has green in color. ठीक है, तो दोनों में कलर जो है वो डी ट्रांजिशन की वजह से ही है. इस वाले में जो डी ट्रांजिशन है इसकी वजह से ब्लू ग्रीन कलर है, और इस वाले में रूबी में जो है उसका ऑरेंज रेड कलर है. सो दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी एंड दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. अभी हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे. Let us go through few questions. So the first example is the correct order of energy of absorption for the following metal complexes is. So again निकल का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, निकल +2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सब में निकल +2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6. So we can say that कि वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अमोनिया और इथिलीन डायमीन को देखो, इथिलीन डायमीन इज अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन अमोनिया. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि सबसे पहले सबसे कम डेल्टा नॉट की वैल्यू जो होगी वो सी के लिए होगी, फिर बी के लिए होगी, और सबसे ज्यादा डेल्टा नॉट की वैल्यू ए के लिए होगी. दे आर आस्किंग एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन, दे आर नॉट आस्किंग वेवलेंथ, राइट. तो एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब डेल्टा नॉट की बात कर रहे हैं वो. सो डेल्टा नॉट में ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी. फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग ए ऑप्शन इज करेक्ट. इससे हमें ए ऑप्शन सही मिल रहा है. द सेकंड एग्जांपल मेंस 2020 का एग्जांपल है. द थ्योरी दैट कैन बी कंप्लीटली और प्रॉपरली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन निकल कार्बोनिल. तो एनसीईआरटी में मेटल कार्बोनिल्स के बारे में दे रखा है, और रूम टेम्परेचर पे ज्यादातर जो मेटल कार्बोनिल्स हैं वो सॉलिड हैं. दो एक्सेप्शंस हैं, निकल कार्बोनिल एंड आयरन कार्बोनिल. दे आर गैसेस, वेपर्स एट रूम टेम्परेचर, राइट. सो दे आर आस्किंग द थ्योरी दैट कैन कंप्लीटली और प्रॉपरली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग in this. So the answer is molecular orbital theory. How this is related? Because in your NCERT, see this metal carbonyl nickel zero oxidation state में तो CFT नहीं लगेगी यहाँ पे, right? CFT will not. And we have discussed that कि चार तरह की हमारे पास थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में: वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में या लिगेंड फील्ड थ्योरी के बारे में हमें डिटेल स्टडी नहीं करनी है, हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में स्टडी करना है. बट फ्यू एग्जांपल्स इज गिवन हियर, लाइक अभी अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक साइनर्जिक बॉन्ड को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. जैसे कार्बन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है. अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम एमओटी से कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा. कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है इस मेटल कार्बोनिल में, वो जो एक्चुअल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ से बड़ी आ रही है, एंड वी हैव टू थिंक सम थ्योरी व्हिच कैन एक्सप्लेन इट. सो थ्योरी इज कि जब ये मेटल और कार्बोनिल के बीच में सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स में प्रोवाइड करेगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एंड व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8 4s2. बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में जो 4s वाले इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो s ऑर्बिटल खाली होना ही चाहिए अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगानी है. तो s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो d में आ जाएंगे, तो यहाँ पे d पूरा भरा हुआ है और s खाली हो गया है, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है NiCO4 की. सो नाउ व्हाट वी आर सेइंग दैट कि हमारे पास जो मेटल है वो d ऑर्बिटल्स पूरे भरे हुए हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि 14 तक यहां तक भर गए, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज π* 2px. तो अभी हम बात कर रहे हैं साइनर्जिक बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग की बात हो रही है, जहां पे जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है सेंट्रल एटम का वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है इन वैकेंट π* molecular orbital, and because electrons are going in π*, because of that the bond order will decrease, and if the bond order will decrease we can say that bond length will increase. So the increased bond length in this can be explained by synergic bond. और दूसरा ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बैक बॉन्डिंग हो रही है इसमें जो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है वो π* में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट. बैक बॉन्डिंग से जो बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड बन रहा है, राइट. सो
वी आर सेइंग दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज पाई एक्सेप्टर लिगेंड। हम दो तरह के लिगेंड के बारे में डिस्कस करेंगे, पाई डोनर लिगेंड एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये 2020 का क्वेश्चन है। सिनर्जिक बॉन्ड, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। नेक्स्ट एग्जांपल, अमंग द स्टेटमेंट्स ए टू डी द इनकरेक्ट वंस आर। पहला ऑप्शन है ऑक्ट्राहेड्रल कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्सेस विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैव वेरी हाई मैग्नेटिक मोमेंट। पहले तो ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और कोबाल्ट है। कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2। अब कोबाल्ट +3 में है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमें फिल करना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, राइट। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए, इस हिसाब से ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है एंड दे हैव गिवन हाई मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज रॉन्ग, राइट। पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन डिस्कस करते हैं, व्हेन डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होगी तो पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे फिर पेयरिंग होगी। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट थर्ड इन ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज T2G में 4 इलेक्ट्रॉन और G में 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज सिंपल। अभी हम कोबाल्ट +3 की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3d6 ही है, 6 इलेक्ट्रॉन है D में। और क्योंकि डेल्टा नॉट की वैल्यू जो है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है तो पेयरिंग नहीं होगी, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे एंड देन पेयरिंग विल टेक प्लेस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। सी ऑप्शन, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब्ड बाय कोबाल्ट En थ्राइस 3+ इज लोअर देन दैट ऑफ कोबाल्ट। सो कोबाल्ट +3 में है, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन हमें पता है En स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसका डेल्टा नॉट ज्यादा होगा। इसका डेल्टा नॉट ज्यादा होगा तो इसका लैम्डा एब्सॉर्ब कम होगा, बिकॉज डेल्टा नॉट एंड लैम्डा एब्सॉर्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये स्टेटमेंट सही है। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज इफ द डेल्टा नॉट फॉर एन ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट थर्ड इज 18,000 पर सेंटीमीटर, देन डेल्टा टी। हमने रिलेशन पढ़ा है कि डेल्टा टी की जो वैल्यू होती है स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज ऑलमोस्ट हाफ टाइम्स ऑफ ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो डेल्टा इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। hc कांस्टेंट है, तो हम यहां से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि लैम्डा एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्राहेड्रल इसका आधा होना चाहिए, दैट इज 9,000। दे हैव गिवन 16,000 व्हिच इज रॉन्ग। सो डी ऑप्शन सीम्स टू बी इनकरेक्ट। तो हमें ये फाइंड आउट करना है इसमें कि कौन से इनकरेक्ट हैं। सो वी आर गेटिंग दैट ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होना चाहिए वो डी ऑप्शन होना चाहिए। अनदर एग्जांपल, कंसीडरिंग दैट डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। मतलब डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात हो रही है। द मैग्नेटिक मोमेंट इन बोर्स मैग्नेटोन ऑफ रुथेनियम H2O6 2+, right? So here ruthenium, if you see iron, ruthenium and osmium, iron का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। रुथेनियम का एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, दैट इज 4d7 5s1, बट रुथेनियम इज प्रेजेंट इन +6, so इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 4d6। तो d में 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन, मतलब क्या होगा, पेयरिंग विल टेक प्लेस। इफ पेयरिंग विल टेक प्लेस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0। 2020 का क्वेश्चन है। द next example is of 2020. Again they are asking that the species that has spin only magnetic moment of 5.9 बोर मैग्नेटोन। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, डेसिमल पार्ट हटा दो, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस कॉम्प्लेक्स में है ये देखना है। तो NiCO4 में हम CFT लगा ही नहीं सकते क्योंकि निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पे हम अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाएं तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d8 4s2। अगर ये टेट्राहेड्रल बना है या स्क्वायर प्लेनर, दो पॉसिबिलिटी, s तो खाली करना पड़ेगा। तो s को खाली करेंगे मतलब 2 s के इलेक्ट्रॉन जो है वो d में जाएंगे, तो d तो फुलफिल हो गए। इसका मतलब ये है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है, नाउ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी आर नॉट अप्लाइंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इट इज नॉट पॉसिबल। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स हम पेयर करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट शुड बी 0। द सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ हम CFT लगा सकते हैं।
manganese is present in +2 oxidation state, right? So central atom or ligand is negatively charged, so coordination number is 4. Br is a weak field ligand, so from there we can write electronic configuration of manganese is 3d5 4s2, but manganese +2 में तो 3d5 4s0। तो CFT के हिसाब से अगर हम बात करें तो अभी क्या होना चाहिए, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इट शुड फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसे कह रहे हैं हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो जो डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले एक एक फिल होंगे, राइट, एंड देन पेयरिंग विल टेक प्लेस। तो मैग्नीज +2 में 5 है, एक एक सब में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच, एंड इफ फ्रॉम देयर इफ आई कैलकुलेट दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 5.9। सो सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे और यहाँ एंड दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। द थर्ड ऑप्शन इज NiCl4 2-, यहाँ निकल +2 में है, क्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, निकल +2 मतलब 3d8 4s0। सो 3d8 4s0 में अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, वीक फील्ड लिगेंड है, राइट, एंड इट इज फॉर्मिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसे कह रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि डी में अगर इलेक्ट्रॉन है और पेयरिंग बाद में होनी है, मतलब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब डी ऑर्बिटल्स ऑक्युपाइड है, मतलब s और p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, so it is tetrahedral complex, and from there we can write that what is the magnetic moment। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे टेट्राहेड्रल में, ये T2 है, T2 ऊपर होता है और E जो है वो नीचे होता है। सो इफ वी फिल हियर 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, अभी हमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो यहाँ पे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर पेयरिंग होगी, तो 1 1 1 1 1 एंड देन पेयरिंग विल टेक प्लेस। So there are two unpaired electron, and from there we are getting that the magnetic moment is equal to 2.8. In case of NiCN4, Cn strong field ligand है, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करता हूं तो याद हमें s ऑर्बिटल खाली करना पड़ेगा। तो यहाँ निकल में है 3d8 4s ऑर्बिटल खाली है, बट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग फील्ड ligand पेयरिंग विल टेक प्लेस, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट we'll discuss this point, because we are not able to derive exactly from CFT and valence bond theory. It is with the help of ligand field theory we are able to explain that. but अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर प्लेनर में CFT की वैल्यू होगी, और अगर CFT की वैल्यू ये है तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। अगर ये क्वेश्चन है जहां पे अनपेयर्ड 5 है, यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो हो ही नहीं सकते ना, 3d8 है, 3d8 में इट कैन नॉट बी पॉसिबल दैट 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इफ यू डोंट नो देन ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट दैट ओनली बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बट ये हम डिस्कस करेंगे, इफ अ कॉम्प्लेक्स इज गिवन वी कैन फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इफ वी एड सम पॉइंट फ्रॉम लिगेंड फील्ड थ्योरी, उसको हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट कलर जो है वो डी ट्रांजिशन की वजह से हो सकता है या चार्ज ट्रांसफर की वजह से हो सकता है, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने जो कलर का रीजन बताया वो डी ट्रांजिशन बताया, राइट। अब डी ट्रांजिशन के अलावा नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। सो द फर्स्ट एग्जांपल इन दिस इज चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, राइट, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। सो चार्ज ट्रांसफर KMnO4 है, इन केस ऑफ KMnO4 दिस इज द कॉम्प्लेक्स आयन MnO4-, राइट। तो मैग्नीज का अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूं इट इज +7, तो मैग्नीज होता है 3d5 4s2, +7 मतलब डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डी ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो द कलर ऑफ, वी नो दैट द कलर ऑफ दिस इज डार्क पर्पल कलर, KMnO4 डार्क पर्पल कलर का होता है, बट द कलर कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय डी ट्रांजिशन। तो अब हम इसको चार्ज ट्रांसफर से कैसे कह रहे हैं कि यहाँ जो मेटल आयन है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में इट कैन इजीली टेक इलेक्ट्रॉन, सो इट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो लीगेंट है इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। Oxide ion can give electron and this metal ion can take electron. So based on that, this is the condition where we can explain the charge transfer, क्योंकि डी ट्रांजिशन से ये कलर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। So now if we discuss कि क्या हो रहा है इसमें, so this is the स्ट्रक्चर ऑफ दिस, राइट। अगर मैं इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाऊं और लिखूं तो डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इसमें जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगा के हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं होता है D3s हाइब्रिडाइजेशन, राइट। इट इज नॉट कि टेट्राहेड्रल है तो sp3 होगा, दिस इज D3s हाइब्रिडाइजेशन, राइट। इन दिस D3s हाइब्रिडाइजेशन दीज आर द ऑर्बिटल्स विच आर पार्टिसिपेटिंग। ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो जब हम डी ब्लॉक में MnO4 माइनस के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मैग्नीज ऑक्सीजन बॉन्ड्स कितने होंगे। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, सो आंसर इज 4। एंड दिस लिगेंड इज अ पाई डोनर लिगेंड। ये समझना है कि यहाँ पे KMnO4 में जो ऑक्साइड आयन है या जो ऑक्सीजन है, हाउ इट इज एक्टिंग लाइक अ पाई डोनर लिगेंड। तो हमें पता है कि अभी इसका जो डी ऑर्बिटल है मैग्नीज का वो खाली है, और इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इस ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये डी ऑर्बिटल्स हो गए। और अभी हमने डिस्कस किया कि हाइब्रिडाइजेशन, तो ये वाले डी ऑर्बिटल्स होंगे। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स को मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, ये नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स है। एंड अभी क्या हो रहा है कि अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं मैं तो 1s2 2s2 2p6, तो आउटर मोस्ट में s में भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। तो s ऑर्बिटल क्या है इसके, ये जो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या वो आके इससे ओवरलैप करेंगे और ये s वाले इलेक्ट्रॉन्स देंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर 2s और 3d एक दूसरे के अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आएंगे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, लेकिन ये वाला डिस्ट्रक्टिव है। सो इट इज नॉन बॉन्डिंग, बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। वी आर डिस्कसिंग ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सेम वे अगर मैं कहता हूं कि ये 2p जो है इंटर सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्या, तो वी कैन डिस्कस हियर देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि अगर ये जो ऑक्साइड आयन है इसका 2p ऑर्बिटल आके ओवरलैप करेगा, देन अगेन दिस इज कंस्ट्रक्टिव बट दिस इज डिस्ट्रक्टिव, एंड बिकॉज ऑफ दैट नॉन बॉन्डिंग कंडीशन विल बी देयर। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है। फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, 2p का ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, और वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ दिस मैग्नीज, और ये लेटरल ओवरलैपिंग है क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है वो ऑर्बिटल्स हैं एंड दे आर ओवरलैपिंग, तो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, राइट? दिस इज, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि दिस इज पाई डोनर लिगेंड। पाई बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है उसमें जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है ऑक्साइड आयन, राइट? तो ऑक्साइड आयन जो है वो पाई डोनर लिगेंड है। तो दे विल आस्क कि व्हिच टाइप ऑफ लिगेंड इट इज पाई डोनर लिगेंड। सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई डोनर लिगेंड। नाउ हाउ डू वी नो दैट कि कलर जो है, एक तरीका ये है कि एक तो हमें यहाँ मिल गया कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो है ही नहीं डी में, तो डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। बट देयर आर सर्टन थिंग्स लाइक इन डी ट्रांजिशन जनरली द कलर इज नॉट वेरी इंटेंस, क्योंकि उसमें जब डी ट्रांजिशंस के कुछ रूल हैं जिसमें सारे डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। सम डी ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हियर। सो जनरली जो हमें डी ट्रांजिशन से कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं वो बहुत इंटेंस कलर वाले नहीं होते हैं, लेकिन जो चार्ज ट्रांसफर से कलर्स हमें मिलते हैं दे आर वेरी इंटेंस। तो आप देखोगे KMnO4 जो होता है वो डार्क पर्पल कलर का सॉलिड होता है, राइट? दिस इज इंटेंस इन कलर। सो द इंटेंसिटी ऑफ कलर इज बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि ये जो चार्ज ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। सो हियर आई एम रीडिंग दैट these transitions are strong transitions. The intensity of the color is due to the fact that there is a high probability of these transitions taking place, और because of that highly intense color होता है इन लोगों का, ठीक है? तो अगर बहुत हाईली इंटेंस कलर है तो थ्योरी भी एक इंडिकेट कर रही है कि हमें देखना चाहिए कि ये चार्ज ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, राइट? सो नाउ यू गॉट दैट डी KMnO4 में जो है वो D3s है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और ऑक्साइड आयन पाई डोनर लिगेंड है, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मैग्नीज ऑक्सीजन बॉन्ड इज इक्वल टू 4। सेम वे देयर आर मेनी एग्जांपल्स लाइक K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। अगेन यहाँ क्रोमियम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D04S0, क्योंकि क्रोमियम इज प्रेजेंट इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता, बट हमें पता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है। अगेन इफ वी डिस्कस कि यहाँ पे अगर मैं ज्योमेट्री देखूं, क्रोमियम जो है वो 4 मतलब इट इज सराउंडेड बाय 4 एटम्स एंड इट इज टेट्राहेड्रल, राइट? इन दिस कॉम्प्लेक्स क्रोमियम जो ये ज्योमेट्री है इसकी दैट इज टेट्राहेड्रल। सो वी कैन से अगेन सेम वे दैट कि यहाँ s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में ओवरलैप करके D3s हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, तो ये वाला जो ब्रिज बॉन्ड है ऑक्सीजन वाला ये इक्विवेलेंट नहीं होगा, बट ये तीनों जो है रेजोनेंस की वजह से और ये तीनों रेजोनेंस की वजह से इक्विवेलेंट बॉन्ड होंगे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड इज इक्वल टू 6, एंड बाय द सेम वे वी कैन से दैट दिस ऑक्सीजन और ऑक्साइड आयन इज एक्टिंग लाइक अ पाई डोनर लिगेंड। जैसा हमने KMnO4 में पढ़ा था उसी तरह से हम कह सकते हैं।
The third example is K2CrO4. Again, chromium is present in +6, and this is CrO4 2 minus ion, right? So because of resonance, all these bonds are equivalent. So maximum number of equivalent chromium oxygen bond is equal to 4. And ligands are pi donor ligands. अब आपको शायद समझ में आ रहा है कि पाई डोनर लिगेंड, ऑक्साइड आयन पाई डोनर लिगेंड क्यों है, क्योंकि अगर हम डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करेंगे और ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये एक्सियल नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हैं, तो नॉन एक्सियल जो डी ऑर्बिटल्स होंगे जब वो पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो नॉन बॉन्डिंग बनेगी, राइट? और अगर वो लेटरल ओवरलैपिंग होगी तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. तो दैट lateral overlapping is related to formation of pi bond. That's why we are saying that oxide ion is acting like pi donor ligand. Same way we can say that Hgi2 जो है उसका brick red color होता है. Again this is very intense color. और जिंक कैडमियम मरकरी में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है. जिंक +2 में है तो 3d10 4s0. सेम वे मरकरी +2 3d10 6s0. हमें पता है जिंक कैडमियम और मरकरी में जो पोलराइजिंग पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है. तो हमें ये भी पता है कि Hgi2 जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड की तरह एक्ट करता है. इट इज नॉट आयनिक कंपाउंड, राइट? एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट all the d orbitals are fulfilled. If all the d orbitals are vacant or all the d orbitals are fulfilled, there is no dd transition. तो ये जो कलर है brick red color which is intense color cannot possible because of dd transition. It is possible because of charge transfer from ligand to metal. Same way this is not in our syllabus but just I am giving example. जैसे कि charge transfer from metal to ligand, ligand to metal होता है, वैसे ही charge transfer from metal to ligand होता है. अगर हम charge transfer की बात करते हैं ligand से metal तो हमारा जो central atom होता है वो highest oxidation state में होना चाहिए, बहुत अच्छा oxidizing agent होना चाहिए, जबकि यहाँ पे उल्टा होना चाहिए. इसमें यहाँ पे अगर हम मेटल आयन की बात करें तो मेटल आयन या तो 0 या +1 या +2 में होना चाहिए, मतलब ये हाईली रिड्यूसिंग होना चाहिए, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाए, राइट? और जो लीगेंट होना चाहिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले पाए. सो लीगेंट इज एक्टिंग लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द मेटल आयन और मेटल इज एक्टिंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो देयर इज अ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लीगेंट. सो लाइक ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इंटेंस कलर हैं, डार्क रेड कलर. तो इन कंपाउंड्स में अगर मैं आयरन की बात करता हूँ, आयरन और ये बाइपेरिडीन है ना, और इस ये बाइडेंटेड लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है. आयरन +2 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वी नो दैट 3d6 4s0. तो इसमें dd ट्रांजिशन भी हो सकता है, राइट? इट इज dd ट्रांजिशन इज देयर बट dd ट्रांजिशन की वजह से बहुत डार्क कलर नहीं मिलेगा. तो डार्क रेड कलर कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय dd ट्रांजिशन. सो हियर द डार्क कलर इज explained by charge transfer, right? And that charge transfer is taking from metal to ligand, right? Iron +2 से +3 में जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, right? So with the help of that we can explain the dark red color, right? And same way for this big ये blood red coloration होता है iron +3 का, ये टेस्ट है. So blood red coloration is also very intense color which can not be explained by dd transition. dd transition से जो कलर होते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें फॉरबिडन होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ट्रांजिशन इज लेस, तो बहुत इंटेंस कलर नहीं आता. तो यहाँ पे इंटेंस कलर कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय चार्ज ट्रांसफर. सो जस्ट एन एग्जांपल, दीज आर थिंग, दिस पोर्शन इज नॉट इन आवर सिलेबस. इससे पहले वाला जरूर है जो एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है. नाउ द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम मेटल टू मेटल. ये हमारे सिलेबस में है और अभी मेंस में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है. तो दो कंपाउंड होते हैं आयरन के, एक होता है टर्नबुल्स ब्लू और एक होता है प्रशियन ब्लू. सो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ दैट? अगर हमारे पास एक्वस मीडियम में आयरन +3 है तो आयरन +3 को फाइंड आउट करने के लिए एक हम टेस्ट करते हैं, हम K4FeCN6 ऐड करते हैं इस सॉल्यूशन में. तो ये आयरन +3 है, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. So what will happen कि ये जो है वो there is a reaction and because of this reaction there is a formation of this complex ion. तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आयरन यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये जो एनायन है उस पे 4 नेगेटिव चार्ज है. तो अगर मैं यहाँ 3 पोटेशियम को डिस्प्लेस कर दूं तो इसको मैं और आयरन इसकी जगह रख दूं तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि KFeCN6. सो दिस आयरन, ये जो पहले वाला सॉल्यूशन में है वो आयरन +3 है, दिस इज इन कॉम्प्लेक्स आयरन +2 एंड देयर इज इंटेंस ब्लू कलर. अगेन देयर इज एन इंटेंस ब्लू कलर ऑफ दिस कंपाउंड एंड दैट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड क्योंकि dd ट्रांजिशन होगा, लेकिन dd ट्रांजिशन की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है
उसमें इतना इंटेंस कलर नहीं हो सकता। तो दैट इंटेंस कलर कैन बी एक्सप्लेन बाई ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम दिस, यहाँ पे जो आयरन है ये +2 में है, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, सो देयर इज अ charge transfer, right? And again this is happening frequently, the probability is more, so the color, the intensity of the color will be more. तो intense blue color can be explained। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इस रिएक्शन को कि ये जो आयरन है, इस आयरन में ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसकी वैलेंसी 3 है, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसकी वैलेंसी 4 है। तो क्रिस क्रॉस रूल लगा के मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इस कॉम्प्लेक्स को कि ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसकी वैलेंसी 4 और ये जो आयरन आयन है इसकी वैलेंसी 3। तो आई कैन राइट Prussian blue like this also and this also, both are fine। now अगर हमें आयरन +2 का टेस्ट करना है तो सिमिलर टेस्ट है आयरन +2 के टेस्ट में, एक्वस मीडियम में आयरन +2 is there and we'll add a complex where the iron is present in +3 oxidation state। so same way I can write the reaction into two form। एक फॉर्म ये है, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है यहाँ पे कि इसकी जो वैलेंसी है वो 3 है और इस आयरन मेटल की वैलेंसी 2 है, तो हमने 2 पोटेशियम को रिप्लेस करके एक आयरन यहाँ पे रख दिया। तो हम इस फॉर्म में लिखें या हम इस फॉर्म में लिखें, क्योंकि सॉल्यूशन में ये सब आयन सेपरेटेड है ना, ये इस तरह से, तो वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो और वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस iron +2 we are saying that this compound is pale blue in color, this is intense blue in color Prussian blue and this is pale blue in color। और अगेन इस कंपाउंड को हम कहते हैं टर्नबुल्स ब्लू। सो इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट Prussian blue and टर्नबुल्स ब्लू आर केमिकली सेम एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय ट्रांसफर ऑफ चार्ज। मतलब हम इन दोनों कंपाउंड्स को, चाहे ये Prussian blue, क्योंकि इसमें भी अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो क्या होगा कि ये जो आयरन +2 है वो इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा और ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो केमिकली हम इन दोनों कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए हैं और they are intense blue in color and that can be only explained by transfer of charge from metal to metal। so based on this in 2022 they have asked a question and the question is iron +3 cation gives a Prussian blue precipitate on addition of potassium ferrocyanide due to the formation of what? They are asking that what will form। so already we have discussed that when iron +3 is there we can write the reaction in two form। one form is there iron +3 is there and we are writing this complex and here iron is present in +2 oxidation state but the valency of this complex ion is 4। so criss cross rule we can apply this criss cross rule। इसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते थे, मतलब ये मेंस में इस फॉर्म में भी आ सकता था कि ये कंपाउंड होना चाहिए था KFe और ये आयरन जो है वो +3 वाला है और यहाँ पे होना चाहिए FeCN6। so I can write this Prussian blue in this form or that form, both are correct, दोनों फॉर्म ही करेक्ट है, ठीक है। तो अभी इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो अभी हमने डिस्कस किया कि कलर इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि लैम्डा नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ एब्सॉर्ब। और कलर्स को याद करना, अगर आप याद कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डी ब्लॉक में भी दे रखे हैं मेटल आयन इन एक्वस मीडियम और आप जब सॉल्ट एनालिसिस करते हो तब वहां भी कलर की जरूरत पड़ती है, बट देयर कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है ना उसको याद करना थोड़ा मुश्किल है। there is no very scientific way but if you have to guess or you forget all the things तो आप कलर व्हील को तो यूज कर सकते हो। उस कलर व्हील में मतलब हमें स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स है, आप इंडिगो को हटा दो तो कलर व्हील में कितने कलर्स होंगे? 6 कलर्स होंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एटलीस्ट यू कैन गेस दैट व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस। कुछ को तो आप रिजेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने अभी तक जो पढ़ लिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने डिस्कस कर लिया कि चार्ज कैसे मतलब हम मैग्नेटिक स्पिन कैसे एक्सप्लेन करें या हम कलर कैसे एक्सप्लेन करें। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई, वी आर गोइंग टू ऐड सम पॉइंट्स फ्रॉम लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड देन वी डोंट हैव टू रिमेम्बर कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है तभी हम इसका ज्योमेट्री बता सकते हैं या हमें ज्योमेट्री पता है तभी हम CFT लगा सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं जो कि ना तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की प्रॉब्लम ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट नहीं दे रखा है तो हम ज्योमेट्री नहीं बता सकते, CFT की प्रॉब्लम ये है कि ज्योमेट्री नहीं पता है तो हम मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, क्योंकि स्प्लिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इन दो जो डिमेरिट्स हैं इनको दूर करने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से लेंगे और डायरेक्टली लिखेंगे और उनको हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अप्लाई करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेंस और एडवांस में जो इन पॉइंट्स पे बेस्ड हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ज्यादातर जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस
डिस्कस करूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस जो जेई मेंस के हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू।